Digestion starts in the mouth, also known as the oral cavity, where mastication occurs. This is the process of chewing and mechanically breaking down the food bolus. Chemical digestion starts when the salivary glands release saliva into the oral cavity. Saliva is rich in amylase, an enzyme that breaks down carbohydrates. After the bolus has been broken down adequately, swallowing begins. The food bolus passes through the pharynx and into the esophagus. Peristalsis, which is rhythmic contractions of the muscle layers, pushes the bolus down the esophagus. The bolus passes into the stomach through the lower esophageal sphincter. This sphincter normally remains closed, preventing reflux of the stomach contents. The stomach is divided into anatomical regions: the cardia, fundus, body, and antrum. The muscular outlet of the stomach is called the pylorus. The surface of the lumen is covered in folds called rugae. Peristaltic contractions continue in the stomach, churning and mixing the food bolus with hydrochloric acid and the digestive enzyme pepsin. Neural and hormonal stimulation causes the release of pepsin by the stomach, which starts the chemical digestion of proteins. This helps reduce the bolus to a fluid-like substance called chyme. When the chyme reaches its proper softness, the pylorus opens and the chyme is slowly released into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Peristaltic contractions continue in the duodenum. It is within the duodenum that the chyme mixes with pancreatic juice and bile. The process of digestion causes neural and hormonal stimulation of the pancreas to release pancreatic juice. Specialized pancreatic cells produce the pancreatic juice. The juice contains digestive enzymes and bicarbonate. The major digestive enzymes are amylase, which digests carbohydrates, lipase, which digests fats, and protease, which digests proteins. When pancreatic cells release the juice, it flows through tiny pancreatic ducts, which lead to the main pancreatic and accessory pancreatic ducts. Then, the juice is released into the duodenum through the major and minor papillae, where it mixes with the chyme. In order to protect the pancreas, protease is released in an inactive form and is activated once it reaches the duodenum. Bicarbonate within the juice acts to neutralize the acidic chyme, which creates a favorable environment for the digestive enzymes to function. Located above and in front of the pancreas, the liver has many roles, including the maintenance of metabolic homeostasis. The liver maintains this because it receives most of the blood flow via the portal venous system from the small and large intestines. This blood contains nutrients absorbed during digestion. The liver processes these nutrients and vitamins and helps detoxify the blood passing through the portal venous system. Another role of the liver is the production of bile, which is a liquid that contains bile salts and other substances. Bile salts emulsify fat within the small intestine. Liver cells, known as hepatocytes, secrete the constituents of bile into tiny bile canaliculi, which flows into larger hepatic ductules that eventually combine to form the right and left hepatic ducts. Bile then flows into the common hepatic duct and cystic duct, where it enters the gallbladder to be concentrated and stored. During digestion, the gallbladder contracts and pushes the bile through the cystic duct and common bile duct, where they join the pancreatic duct at the hepatopancreatic ampulla. The bile then empties into the duodenum through the major papilla. The bile mixes with the chyme and helps to digest fat. The chyme continues to mix with the digestive enzymes as it moves through the duodenum and into the jejunum, the second portion of the small intestine. Nutrients from the digested food are absorbed into the bloodstream in the jejunum. The bolus moves through the jejunum and reaches the ileum, where there is more nutrient absorption. The unabsorbed portion of the bolus passes out of the ileum and into the large intestine through the ileocecal valve. The first portion of the large intestine is called the cecum. The main function of the large intestine is to absorb water and solutes, such as fatty acids, which help concentrate and form the stool. The bolus is pushed by a peristaltic wave up and through the ascending colon, which passes through the first major bend in the colon, the hepatic flexure. The bolus is now pushed through the transverse colon and then travels through the second major bend, the splenic flexure. Then the bolus moves down the descending colon
and into the sigmoid colon before entering the rectum. The formed stool enters and is stored in the upper portion of the rectum. The anus contains anal sphincter muscles that remain tightly closed until neural input causes the rectum to widen. Then the stool descends, the anal sphincter relaxes, and defecation occurs. के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो चित्र बनता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें सुंदर फूल, पत्तियां और फल शामिल होते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं और आसानी से किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं? जी हाँ, ये पूरी तरह से सच है। ये पौधे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये मांसाहारी पौधे हैं, जैसा कि आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। दरअसल धरती पर मौजूद ज़्यादातर पौधे अपने खाने के लिए मिट्टी, धूप और पानी पर आश्रित रहते हैं और अपने लिए ज़रूरी न्यूट्रिशंस यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन्हीं से लेते हैं। पर धरती पर मौजूद कुछ पौधे हमेशा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की तलाश में रहते हैं, जिसके लिए वो जीवों का शिकार करते हैं, जहां वो अपने शिकार को जकड़कर उनके शरीर में मौजूद ज़रूरी न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जहां वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अलग अलग और बेहतरीन तरीके अपनाते हैं। बस अच्छी बात यह है कि ये पौधे ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये बस छोटे कीड़े या फिर छिपकली और चूहों को ही पकड़ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कुछ और बड़े होते तो शायद इंसान को भी अपना शिकार बना सकते थे। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में करीब 750 ऐसे पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो मांसाहारी हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मांसाहारी पौधों की बात करेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप। जब भी हम धरती पर मौजूद कुछ खतरनाक पौधों की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आमतौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप का ही होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इस पौधे के भयंकर रूप को कुछ हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा, जहां ये बड़े बड़े जानवरों से लेकर इंसान तक को अपना शिकार बना लेता है। पर असलियत में ये इतना बड़ा नहीं होता, जिसके कारण ये इंसानों या जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पाता है। यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में पाया जाने वाला ये पौधा एक अजीब सी सुगंध छोड़ता है, जिसके कारण कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो कीट इसके पत्तों पर आकर बैठते हैं तो ये अचानक से अपने पत्तों को बंद कर लेता है, जो इसके लिए मुंह का काम करते हैं, जिसमें ये पौधा 1 सेकंड से भी कम का समय लगाता है और यहीं से ये अपने शिकार को पचाना भी शुरू कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस पौधे के एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये किसी भी इंसान को आसानी से पचा सकता है। बस अच्छी बात यही है कि ये पौधा साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण ये कीड़े मकोड़ों को ही खा पाता है। पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स को ये नाम उनके पिचर यानी मटके जैसे रूप के लिए मिला है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और इसी पानी को पीने जब कीट पतंगे आते हैं तो वो इसके जाल में फंस जाते हैं, जहां ये पौधा अपने ऊपर मौजूद ढक्कन जैसी इस चीज़ को अचानक बंद कर लेता है और कीड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। पूरी दुनिया में पिचर प्लांट्स की बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं और इन सब का शिकार करने का तरीका लगभग एक सा ही है। ये पौधे अंदर से बहुत ज़्यादा फिसलन भरे होते हैं, जिसके कारण एक बार गिरने पर कीड़ा इनसे बाहर नहीं निकल पाता है और कुछ पौधों में तो अंदर की तरफ मुड़े बाल होते हैं जो कीड़ों को बाहर आने ही नहीं देते हैं। ये पौधे आमतौर पर वर्षावनों में पाए जाते हैं, जहां ये छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि निपेंथस एंटरबुर्गी नाम का पिचर प्लांट इतना बड़ा होता है कि वो चूहे, छिपकलियों और पक्षियों को अपना शिकार बना लेता है। ये मौजूदा समय में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी पौधा है, जिसे पहली बार साल 2000 में खोजा गया था। ज़्यादातर पिचर प्लांट्स का निचला हिस्सा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, जो इन पौधों को अपना शिकार पचाने में मदद करता है। सनड्यूज, डोजेरा कैप्निसिस
या सनड्यूज इस लिस्ट में मौजूद मांसाहारी पौधों की तरह ही हैं, जो छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये पौधा आमतौर पर साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। एक बार में देखने पर ये किसी ऑक्टोपस जैसा लग सकता है, जिसने पौधे की शक्ल ले रखी हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की शक्ल ही ऑक्टोपस जैसी नहीं है, बल्कि इसके शिकार करने का तरीका भी ऑक्टोपस जैसा है। जैसे ही कोई कीट इस पौधे पर आकर बैठता है तो इस पौधे के स्टिकी टेंटिकल्स उसको जकड़ लेते हैं और उसको खुले में ही पचाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस पौधे के पत्ते छोटे छोटे बालों से घिरे होते हैं और इन्हीं बालों के अंत में एक लिक्विड पदार्थ होता है। असलियत में ये लिक्विड बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और यही लिक्विड छोटे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो देखने और सूंघने में किसी फूल के मधु जैसी फील देते हैं। साल 2000 में इस पौधे की एक प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई गई, जहां उन्होंने ये पाया कि ये पौधा वहां का नेटिव नहीं था। ब्लैडरवॉर्ट, ये पौधा ज़्यादातर पानी वाली जगह पर पाया जाता है, जहां इस पौधे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के ऊपर होता है। पर जो चीज़ इसको मांसाहारी बनाती है वो है इसकी जड़। इस लिस्ट में मौजूद और पौधों के विपरीत ये पौधा शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जड़ों में मौजूद छोटे छोटे चैम्बर्स का इस्तेमाल करता है, जो असलियत में इसकी जड़ नहीं बल्कि इसका तना ही होता है, क्योंकि इस पौधे में किसी भी तरह की कोई जड़ नहीं होती है। इसी कारण से इसको अपना खाना बनाने के लिए इन चैम्बर्स पर आश्रित रहना पड़ता है, जहां ये छोटे कीड़ों को पकड़कर उनके शरीर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई छोटा कीड़ा इन चैम्बर्स के पास से गुजरता है तो वो कई बार यहाँ मौजूद छोटे छोटे बालों को छू लेता है, जिसके कारण ये चैम्बर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीड़े के बेहद पास आने पर ये चैम्बर्स एकदम से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इनके अंदर जाता है और उसी पानी के साथ साथ वो कीड़ा भी इसके अंदर चला जाता है। इसकी तेजी का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये सारा काम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा हो जाता है, जहां उस कीड़े को सोचने तक का समय नहीं मिलता है। यहां आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसको 1000 गुना धीरे किया गया है। कीड़ों को पकड़ने के बाद ये पौधा इन चैम्बर्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देता है और उसके बाद वो कीड़ा मरना शुरू हो जाता है। अंत में पौधा इन चैम्बर्स को पिचकाकर उसके अंदर मौजूद सारे पानी को निकाल देता है और दोबारा से अपना खाना यानी शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है।